Welcome to all of you on Grow Strong. Dear students and other fellow listeners, hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme, Psychoanalytical Theory of Personality by Sigmund Freud. Sigmund Freud was born on 6th May 1856 in Austria and died on 23rd September 1939 in London. सिगमंड फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रेलिया में हो चुका और उसकी मौत 23 सितंबर 1939 को लंदन में हो चुकी. He was an Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis. As we know that, neurologist is that very person who studies the brain disorders, या हम कह सकते हैं nerve system disorders. Apart from it, Sigmund Freud has given the concept that is known as psychoanalysis. इसीलिए सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है फादर ऑफ psychoanalysis. Dear students, what is psychoanalysis? When we will focus onto the term psychoanalysis, it is composed of two parts. One, psycho, and second, analysis. Psycho simply means mind, and analysis means interpretation of the mind. किस तरह से ह्यूमन माइंड को या हम कह सकते हैं ह्यूमन साइकी को डिस्क्राइब किया सिगमंड फ्राइड ने. There are two eminent personalities. One, Karl Marx, and second, Sigmund Freud, in terms of their contribution. किस तरह से कार्ल मार्क्स यूनिक है क्योंकि वॉचवर्ड ऑफ मार्क्सिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम इकोनॉमी एंड एंड्स विद द इकोनॉमी. यानी कि सोसाइटी का ऑर्डर जो है, व्हेन यू विल लुक थ्रू द प्रिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स, we have to understand and study the nature of society by means of economy. इसीलिए कार्ल मार्क्स को इकोनॉमिस्ट कहा जाता है, रेवोल्यूशनिस्ट कहा जाता है. Likewise, the Karl Marx. Sigmund Freud is also unique क्योंकि सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी का जो वॉच वर्ड है दैट इज सेक्स. यानी कि सिगमंड फ्राइड ट्रीटेड एवरीथिंग अंडर द शेड ऑफ सेक्स. इसीलिए सिगमंड फ्राइड को सेक्स साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, बिकॉज ही हैज ओवर एम्फेसिस्ड ऑन टू द सेक्स. किस तरह से सेक्स रिजल्ट इज द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया जाता है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच इज नोन एज psychoanalysis, we have to focus on its systems. Dear students, there are the various systems which were discussed by Sigmund Freud. Number one, topographical system, and number second, dynamic system. Now, what is topographical system and how topographical system is different from the dynamic system? Dear students, in today's lecture, we will purely focus on topographical system. इसे आप टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट भी कह सकते हो.
एक्चुअली टोपोग्राफी का कॉन्सेप्ट जियोग्राफिया से लिया गया, क्योंकि जियोग्राफिया इज दैट सब्जेक्ट विच डील्स टू स्टडी द अर्थ, या इसे स्पेस साइंस भी कहा जाता है। किस तरह से हम अर्थ को अंडरस्टैंड करते हैं बाय मीन्स ऑफ इट्स लैंडफॉर्म्स, चाहे माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज है, रिवर्स है, अदर लैंड फॉर्म्स एज वेल। और सेम एनालॉजी सिगमंड फ्राइड ने यूज की है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकी। ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, Sigmund Freud has classified the human mind into 3 different levels. Number 1, conscious. Number 2, subconscious. Subconscious को प्रीकॉन्शियस भी कहा जाता है, सेमी कॉन्शियस भी कहा जाता है, या हम इसे फोर कॉन्शियस भी कह सकते हैं। And third important level of the mind, that is known as unconscious. Dear students, now we will give the detailed account of all the levels of the mind one by one. Number 1, conscious. Conscious is that part of the mind about which we have complete awareness, यानी कि ये वो हिस्सा हमारी बुद्धि का है, I mean to say you हमारे माइंड का है, where the individual has having complete awareness, जहां पर complete awareness होती है एक इंडिविजुअल को about his or her own self as well as about the surroundings. For example, conscious means I have clouded the black jacket, so this is conscious activity. मैंने इस वक्त ब्लैक जैकेट पहना है, मैं आपके साथ इस वक्त इंटरेक्शन कर रहा हूं, so this is conscious activity. जिस रूम में मैं हूं इस वक्त, इसकी सीलिंग पे फैन है and that fan contains chocolate color. This is conscious activity. यानी कि कॉन्शियस जो है ये हमारे प्रेजेंट के साथ रिलेटेड है। जब भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है हमारे सराउंडिंग्स में एग्जिस्ट क्या होता है, सो दिस इज नोन एज कॉन्शियस एक्टिविटी। Apart from it, we can give the so many examples in order to understand the concept of conscious. यानी कि ह्यूमन साइकी का जो हिस्सा कॉन्शियस है वहां पर एक व्यक्ति को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। लेट इट एज्यूम कि कोई इंडिविजुअल इस वक्त लिख रहा है, somebody is writing something, this is conscious activity. कोई इंडिविजुअल पढ़ रहा है, दिस इज कॉन्शियस एक्टिविटी। कोई इंडिविजुअल लिसनिंग म्यूजिक, दिस इज कॉन्शियस एक्टिविटी। somebody is cooking the food, this is conscious activity. तो नटशल में हम कह सकते हैं जब एक इंडिविजुअल को कंप्लीट अवेयरनेस होती है रिलेटेड टू द फिनोमेना, so we can say that this is conscious activity. Keeping in view the Freud's Iceberg Model, सिगमंड फ्राइड ने ह्यूमन साइकी को रिलेट किया आइसबर्ग के साथ। बिफोर वी विल रिलेट द ह्यूमन साइकी विद द आइसबर्ग, लेट वी टू अंडरस्टैंड what do you understand or what we understand from the term iceberg. Iceberg is basically huge mass of ice which has upward and downward moment in the water. ये बर्फ का एक बड़ा लुथड़ा है जो पानी में तैरता है, और ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करने के लिए सिगमंड फ्राइड ने ह्यूमन साइकी को
रिलेट किया आइसबर्ग के साथ। द टिप ऑफ द आइसबर्ग which is completely visible in the water, that is known as conscious। यानी कि आइसबर्ग का टिप जो है, जो हर एक को दिखाई देता है, जो कंप्लीटली विजिबल होता है, फ्राइड उसे कहता है दिस इज कॉन्शियस, क्योंकि कॉन्शियस में भी हमें कंप्लीट अवेयरनेस होती है। एज पर आइसबर्ग मॉडल, conscious contains 1.92% of our psyche, यानी कि हमारी बुद्धि का जो हिस्सा है वो कितना है कॉन्शियस, दैट इज 1.92%। कभी कभार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीवियस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए भी है, कॉन्शियस कितना बड़ा है हमारी टोटल साइकी में। Approximately it is 1.92%. After the conscious, there is another important part of the mind that is known as subconscious. Dear students, what is subconscious? Subconscious is that very part of the mind about which we have partial awareness. By applying the minimum efforts, we can bring the सबकॉन्शियस इनटू द कॉन्शियस, यानी कि ये हमारी बुद्धि का वो हिस्सा है जहां पर हमें पार्शल अवेयरनेस होती है, यानी कि वी आर हाफली अवेयर, हमें कंप्लीट अवेयरनेस नहीं होती है, इसीलिए इसे सबकॉन्शियस भी कहते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया है, सबकॉन्शियस के बहुत से सिनोनिम्स है, लाइक subconscious is also called foreconscious. It is also called semi-conscious. Semi means half, क्योंकि रियलिटी के मुताबिक हमें हाफली अवेयरनेस होती है, इसीलिए इसे सेमी कॉन्शियस कहते हैं या पार्टली कॉन्शियस भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रीकॉन्शियस। दीज आर द वेरियस टर्म्स विच आर इंटरचेंजेबली यूज्ड टू द सबकॉन्शियस। तो नटशल में हम कह सकते हैं, when we have partial awareness about anything, that is known as subconscious part of the mind. For instance, एक इंडिविजुअल ने किसी जगह पॉकेट रखा and he forgot, मैंने अपने पॉकेट को कहां पर रखा। अब थोड़ा सा जोर देने से उसे याद आ जाता है दरअसल मैंने पॉकेट को कहां पर रखा था। इट मीन्स सबकॉन्शियस फ्लोट्स इनटू द कॉन्शियस। तो इसीलिए वी डिफाइन सबकॉन्शियस कैन बिकम द कॉन्शियस व्हेन वी यूज मिनिमम एफर्ट्स। किसी इंडिविजुअल ने किसी जगह ऐनक रखी, लेकिन वो भूल गया मैंने ऐनक कहां पर रखी, अब उसे याद नहीं आता है। याद दिलाने के लिए थोड़ा सा जोर बुद्धि पे देना है। जो ही इंडिविजुअल थोड़ा सा जोर अपने दिमाग पे देता है, तो जो ये सबकॉन्शियस में आइडिया होता है या थॉट होता है, ये सबकॉन्शियस से फ्लोट होता है कॉन्शियस में, तो उसे याद आ जाता है मैंने अपना चश्मा कहां पर रखा था। या हम और एग्जांपल्स दे सकते हैं, how subconscious turns into the conscious. For instance, eating. हम किसी इंडिविजुअल को कहते हैं कि कल आपने कौन सी सब्जी बनाई, लेकिन उसे याद नहीं आता है। अब याद लाने के लिए the person has to use the minimum force. उसे अपनी बुद्धि पे मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करना है, ताकि जो ये सबकॉन्शियस में आइडिया है ये फ्लोट हो जाए कॉन्शियस में। तो वो वहां से जवाब देता है कल हमने फलानी सब्जी बनाई थी, चाहे साग बनाया था, चाहे शलगम बनाई थी या मुर्गा पकाया था। तो हम कह सकते हैं सबकॉन्शियस वो पार्ट ऑफ माइंड है या ह्यूमन साइकी का है जहां पर हमें पार्शियल अवेयरनेस होती है,
और अब इस सबकॉन्शियस को हम कैसे कॉन्शियस में कन्वर्ट करते हैं? बाय यूटिलाइजिंग द मिनिमम एफर्ट्स। और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो माइंड का कौन सा हिस्सा है जो थोड़ा बहुत फोर्स लगाने से जो कॉन्शियस में कन्वर्ट हो जाता है? डियर स्टूडेंट्स, बच्चा एग्जाम देता है तो उसे क्वेश्चन का जवाब याद नहीं आता है। अब याद दिलाने के लिए द चाइल्ड हैज टू यूटिलाइज मिनिमम एफर्ट्स ऑन टू द माइंड। जो ही वो मिनिमम एफर्ट्स माइंड पे यूटिलाइज करता है, ऑटोमेटिकली उसे क्वेश्चन का आंसर याद आता है। तो हम कहेंगे जो सबकॉन्शियस में आइडिया था वो फ्लोट हो गया कॉन्शियस में। इसीलिए जो सबकॉन्शियस होता है ये कॉन्शियस भी बनता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, वी हैव टू यूज द फोर्स मिनिमम एफर्ट्स सो दैट आवर सबकॉन्शियस कैन कन्वर्ट इनटू द कॉन्शियस। डियर स्टूडेंट्स, according to the Iceberg Model, the portion which is below the conscious, यानी कि वो हिस्सा आइसबर्ग का जो पार्टली इनसाइड द वाटर है और पार्टली आउटसाइड द वाटर है, दैट इज नोन एज सबकॉन्शियस। ना ये कंप्लीटली विजिबल होता है, ना ये कंप्लीटली इनविजिबल होता है। यानी कि बर्फ का वो हिस्सा जो थोड़ा पानी के अंदर है और थोड़ा पानी के बाहर है। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, दिस इज सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस कंटेन्स 0.03% ऑफ आवर ह्यूमन साइकी। हमारे माइंड का जो सबकॉन्शियस हिस्सा है वो कितना है? 0.03%। After the subconscious, there is another important part of the human psyche, that is unconscious. Dear students, always keep it in the mind. Sigmund Freud मशहूर नहीं हो गया है by means of conscious और subconscious. सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस फेमस हो गई by means of unconscious. Because discovery of unconscious is the unique contribution of Sigmund Freud. As per the Freudian psychology, अगर हमें human personality को समझना है, we can neither focus onto the subconscious nor to the conscious. Human personality को समझने के लिए we have to focus on unconscious. And psychoanalysis wholly and solely deals with the unconscious. What is unconscious? When you will look through the prism of Sigmund Freud, unconscious is that part of the mind about which we have complete unawareness. By applying the maximum efforts, neither the unconscious can become the subconscious nor the conscious. यानी कि ये बुद्धि का वो हिस्सा है जहां पर हमें टोटली अनअवेयरनेस होती है, हमें कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है। इसीलिए फ्राइड इसे कहता है अनकॉन्शियस। कीपिंग इन व्यू द अनकॉन्शियस, इट मेजरली इफेक्ट्स आवर पर्सनालिटी। फ्राइड का मानना है हमारी पर्सनालिटी जो है ये मेजरली इफेक्ट होती है अनकॉन्शियस से, न कि कॉन्शियस से, न कि सबकॉन्शियस से। व्हाट इज दिस अनकॉन्शियस एंड व्हाट लाइज इन द अनकॉन्शियस? इस अनकॉन्शियस में कौन से थॉट्स होते हैं, कौन से आइडियाज होते हैं, किस तरह से हम उन आइडियाज तक पहुंच सकते हैं? जहां पर एक इंडिविजुअल को कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कोई भी अवेयरनेस नहीं होती है, फिर भी ये हमारी पर्सनैलिटी पे हावी होता है। एज पर फ्रूडियन साइकोलॉजी इज कंसर्न, अनकॉन्शियस इज फिल्ड विद अनफुलफिल्ड विशेस,
desires, motives buried deep into this part of the mind. इसीलिए फ्राइड इसे कहता है डस्टबिन, क्योंकि इसमें स्टोर होता है अनफुलफिल्ड विशेस। जब एक इंडिविजुअल की विश फुलफिल नहीं होती है, जब एक इंडिविजुअल का डिजायर फुलफिल नहीं होता है, तो वो उस डिजायर को भूलने की कोशिश करता है एंड ट्राइज टू पुश इट। और सिगमंड फ्राइड का मानना है जब एक इंडिविजुअल को इसे पुश करता है तो ये अनफुलफिल्ड विश जो है या पेनफुल मेमोरी जो है ये डायरेक्टली अनकॉन्शियस में चली जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इंडिविजुअल को अवेयरनेस नहीं होती है कि मेरा कोई डिजायर था, मेरी कोई विश थी, मेरी कोई मेमोरी थी, लेकिन फिर भी उसकी पर्सनैलिटी दीज अनफुलफिल्ड विशेस डिजायर्स से असरअंदाज होती है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर इंस्टेंस कोई इंडिविजुअल मशहूर क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन वो नहीं बन चुका। कोई इंडिविजुअल जिसकी विश है दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना, लेकिन ये डिजायर फुलफिल नहीं हो चुका। इसी तरह से कोई इंडिविजुअल एक्टर बनना चाहता है लेकिन ये विश फुलफिल नहीं हो चुकी। When the wish is not fulfilled, desire is not fulfilled, it automatically gives birth to the psychological problems. एक इंडिविजुअल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ट्रॉमाज का शिकार हो जाता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है एंड अदर सो मेनी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक इंडिविजुअल पे असरअंदाज होते हैं या हावी हो जाते हैं। अब एंजाइटी से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए ये अपनी विश को जो फुलफिल नहीं हो गई है, अपने डिजायर को जो फुलफिल नहीं हो गया, उसे भूलने की कोशिश करता है। जो ही ये भूलने की कोशिश करता है, इसे पुश आउट करना चाहता है, लेकिन ये डायरेक्टली अनकॉन्शियस में चला जाता है और इसकी पर्सनैलिटी जो है इसमें एबनॉर्मलिटी आती है। इसीलिए फ्राइड का मानना है अगर किसी व्यक्ति में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वी शुड नॉट फोकस ऑन कॉन्शियस, वी कैन नॉट फोकस ऑन सबकॉन्शियस। किसी भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू का, चाहे एक इंडिविजुअल में एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है या और कोई ऑब्सेशन है, वी हैव टू डायरेक्टली फोकस ऑन टू द अनकॉन्शियस। हमें उसके अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक डिजीज या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसका कॉज छुपा होता है अनकॉन्शियस में। दैट इज व्हाई डिस्कवरी ऑफ अनकॉन्शियस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ सिगमंड फ्राइड। डियर स्टूडेंट्स, अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करने के लिए वी हैव टू यूज various techniques. Those are called the psychoanalytical techniques, like pre-association is, dream analysis is, catharsis is, so on and so forth. तो इससे हम एक इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस जान सकते हैं। Dear students, according to Sigmund Freud, the portion which is completely submerged into the water is called unconscious, and it contains 98.05% of our mind. यानी कि जो अनकॉन्शियस है ये आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड है इनटू द वाटर। आइसबर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो समुद्र के नीचे होता है, विच इज कंप्लीटली इनविजिबल, जिसे हम नहीं देख पा सकते हैं। यानी कि अनकॉन्शियस इसीलिए वो माइंड का हिस्सा है जहां पर एक इंडिविजुअल को कंप्लीट अनअवेयरनेस होती है, वो अवेयर नहीं होता है अपने थॉट्स और आइडियाज के रिलेटेड। इसीलिए कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो उसे एक्सप्लोर करने के लिए
हमें अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग द वेरियस थेरेपेटिक मेजर्स। डियर स्टूडेंट्स, सिगमंड फ्राइड के आइसबर्ग मॉडल को समझने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन आल्सो फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम पे दिखाया गया है आइसबर्ग मॉडल, किस तरह से जो आइसबर्ग है ये फ्लोट होता है पानी के अंदर। देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ आइसबर्ग। जो टिप ऑफ द आइसबर्ग पिक्चर पे दिखाया गया है इट इज कंप्लीटली विजिबल और फ्राइड इसे कहता है कॉन्शियस। और दूसरा हिस्सा जो थोड़ा पानी के बाहर है और आधा पानी के अंदर है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड इट इज नोन एज प्रीकॉन्शियस, या हम इसे कहते हैं सबकॉन्शियस। और बड़ा हिस्सा जो है विच इज अप्रोक्सीमेटली 98.05%, विच इज कंप्लीटली इनविजिबल, सबमर्ज्ड इन द वाटर, दैट इज नोन एज अनकॉन्शियस। तीनों पार्ट्स को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो व्हेन यू विल लुक और इवैल्यूएट द आइसबर्ग मॉडल जो फ्लो चार्ट पे दिखाया भी गया है। दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, डायनामिक पार्ट, या हम कह सकते हैं डायनामिक सिस्टम, दैट कंटेन्स id, ईगो एंड सुपर ईगो। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वेरियस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, या हम कह सकते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.